Today I am going to deal the qualification of the physician. ये ऑर्गेनन के एफरेज 3 के अंदर आता है. क्वालिफिकेशन means not your degree which you hold from the university or the other branches. Here the qualification is related to your knowledge, means knowledge of the physician. That is knowledge of the physician. Without knowledge, how you can treat the patient? So you must have the basic knowledge, and that knowledge is related to knowledge of the disease, knowledge of the medicinal power, knowledge of the choice of remedy, knowledge of proper dose, knowledge of the repetition of the dose, and last, the knowledge of the obstacle to cure. Today I describe about the knowledge of the disease. Knowledge of the disease means रोग के बारे में पूर्ण ज्ञान होना बहुत आवश्यक है. अगर हम रोग के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं रखते हैं तो भी हम किसी पेशेंट को आराम करने में असमर्थ हो सकते हैं. केंट ने कहा था कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज. हम होम्योपैथ रोगी का इलाज करते हैं, न कि रोग का इलाज करते हैं. जब हम किसी रोगी का इलाज करते हैं तो रोग स्वतः ही खत्म हो जाती है. रोगी पुनः हेल्दी कंडीशन में चला आता है. होम्योपैथ रोग के नाम पर मेडिसिन नहीं देता है, कारण यहाँ कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन हमारे साइंस के अंदर नहीं है. देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेडिसिन for the specific disease. We select according to the individualization of the patient, according to individualization of the medicine, then give that medicine to the patient, not according to the name of the disease. रोगी के पूर्ण लक्षण को लेकर फिर हम एक दवा का चुनाव करते हैं और उसी से वह स्वस्थ हो जाता है. तो यह प्रश्न उठता है कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज है तो नॉलेज ऑफ डिजीज की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब तक हमें डिजीज के बारे में अच्छा ज्ञान न होगा तो भी हम किसी रोग को क्योर नहीं कर सकते हैं, उसे सप्रेस कर सकते हैं, उसे पैलिएट कर सकते हैं, मगर क्योर कभी नहीं कर सकते हैं. नॉलेज ऑफ डिजीज से हमें कई बातों का ज्ञान होता है और इसके बिना भी हम सही रास्ते तक नहीं पहुंच सकते हैं. हमें ये ज्ञान देता है हाउ टू इवैल्यूएट द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज. जब हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे हम उसके सारे सिम्टम्स को नोट करते हैं और वो जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरली 3 तरह के सिम्टम्स हम नोट करते हैं किसी भी पेशेंट से. जब हम केस टेकिंग करते हैं, किसी पेशेंट का टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जब लेते हैं तो वो पेशेंट जो सिम्टम्स जो देता है
उसमें 3 तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। एक सिम्टम्स जो जनरल सिम्टम्स होती है, दूसरा सिम्टम्स जो पार्टिकुलर सिम्टम्स होता है, और तीसरा सिम्टम्स जो कॉमन सिम्टम्स होता है। जनरल सिम्टम्स हम उस सिम्टम्स को कहते हैं which deals patient as a whole. Means general symptoms is those symptoms which deals patient as a whole. Just like the desire of the patient, aversion of the patient, sleep and dream of the patient, and the mental symptoms of the patient. In those symptoms, when the patient introduced to himself, introduced by the I like sweet, I see such type of dream. So those symptoms which deals by the I, that is denote the patient is saying the general symptoms, and that general symptoms have the great value for the selection of the remedy. Second, the particular symptoms. The particular symptoms is those symptoms which deals the particular parts of the body. When the patient say, my eye is suffering from such and such complaint, my stomach is suffering from such and such complaint, it means the patient is denoted the particular symptoms, because that symptoms is related for the particular organ of the body, particular part of the body. So these symptoms, the particular symptoms have the value, but not the first grade of value, but it is the second grade of value. And third is the common symptoms. Common symptoms is those symptoms which deals the symptoms of the disease, symptoms of the suffering of the disease. Suppose a patient is suffering from the jaundice, and he say that I have dryness of the mouth, I have thirst, I am passing the profuse urine. It denotes the patient is suffering from the diabetes. If a patient is saying, my eye is yellow, my urine is yellow, I am passing the white color of a stool, it means suspected the patient is suffering from the jaundice. So those symptoms which deals the symptoms of the disease, that is the common symptoms, and the common symptoms of no value for the selection of the remedy. Only help the diagnosis of the disease, not help to diagnosis of the medicine. So first grade general symptom, second grade particular symptoms, and the third grade is the common symptoms. And we homeopath more depend upon the general symptoms. We homeopath more depend if the general symptoms is combined with the particular symptom, then very good result get. और हम ये जो डिजीज़ के बारे में जो ज्ञान रखते हैं, डिजीज़ के बारे में जो जानने की जो कोशिश करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के द्वारा आता है। जितने हमारे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का नॉलेज मुझे ज़्यादा होगा, जितना अधिक हमें प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का ज्ञान होगा, उतना ही अच्छा हम प्रिस्क्राइबर बन सकते हैं। तो ये डिजीज़ का नॉलेज आना इसलिए ज़रूरी है कि हमको ये पता चले कि जब हम जिस डिजीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस डिजीज़ का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, क्योंकि हर एक डिजीज़ के साथ कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन आती है, और कॉम्प्लिकेशन भी हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन अगर नहीं जानेंगे तो हम पेशेंट को प्रिकॉशन नहीं दे सकते हैं, पेशेंट को सचेत नहीं कर सकते हैं। पेशेंट को सचेत करने के लिए कॉम्प्लिकेशन को जानना ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ है कि हम मैनेजमेंट करते हैं। ये मैनेजमेंट विदाउट एनी मैनेजमेंट
यू कैनॉट क्योर ए सिंगल केस। हम सिर्फ दवा के द्वारा किसी पेशेंट को आराम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दवा दे करके उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। दवा के साथ साथ मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट मुझे ये सिखाता है कि किस रोग में किस चीज़ का खान पान हमें बंद कर देना चाहिए, किस रोग में किस अवस्था में रहना चाहिए। अगर एक पेशेंट को फीवर लगा हुआ है और वो नदी में स्नान करना चाहता है और स्नान करने के बाद उसका फीवर कभी जा नहीं सकता है, इसलिए उस पेशेंट को स्नान करने के लिए बंद करना पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसको कहना पड़ेगा कि इसमें शुगर नहीं खाओ, उसमें इस तरह का चीज़ नहीं खाओ। अगर कोई जॉन्डिस से सफ़र कर रहा है तो हमको कहना पड़ता है कि इसमें फ़ैट नहीं खाओ और इसमें ऑयली सब्सटेंस नहीं खाओ। चौथी चीज़ है प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोग्नोसिस, क्योंकि प्रायः हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी पेशेंट जब ट्रीटमेंट कराने के लिए आता है तो सबसे पहले वो ये पूछता है कि डॉक्टर साहब, हमारा पेशेंट को आराम होने में कितना वक्त लगेगा, कितने दिन में हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये प्रोग्नोसिस कहाँ से सीखते हैं? ये प्रोग्नोसिस हम नॉलेज ऑफ डिजीज़ के द्वारा ही सीखते हैं। अगर हमें प्रोग्नोसिस पता नहीं हो तब हम पेशेंट के साथ कुछ समय के लिए धोखा करते हैं और उसको कह देते हैं कि आपका पेशेंट इतने दिनों में आराम हो जाएगा। सपोज एक कॉलरा केस है और कॉलरा केस आपके पास आया तो वो ज़रूर पूछेगा कि आप कितना समय लीजिएगा इसको आराम करने में। तो आप 2-4 दिन नहीं कहना पड़ेगा, 2-4 घंटे ही कहना पड़ेगा आराम होने के लिए, क्योंकि आप प्रोग्नोसिस जानते हैं कॉलरा का कि आप 2-4 घंटे में इसको अगर ठीक नहीं कर सके तो पेशेंट डेथ भी कर सकता है। उसी जगह पर अगर कोई क्रॉनिक केस से पेशेंट आता है सफ़र कर करके, अगर एजमेटिक प्रॉब्लम हो, रूमेटिक प्रॉब्लम हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि 2-4 दिन में ठीक कर देंगे। इसमें 2-4 वर्ष भी लग सकता है, 2-4 महीने भी लग सकता है। तो ये प्रोग्नोसिस हम कहाँ से सीखते हैं? प्रोग्नोसिस हम पेशेंट में जो स्टडी करते हैं उसके डिजीज़ को, जो हम उसके डिजीज़ के द्वारा जो नॉलेज लेते हैं, उस नॉलेज के द्वारा हम ये बताते हैं कि आपका पेशेंट जो है आप किस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। ये डिजीज़ एक्यूट डिजीज़ है या क्रॉनिक डिजीज़ है। एक्यूट डिजीज़ है तो उसकी जाने की क्रिया अलग होती है और क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसकी जाने की क्रिया अलग होती है, और क्रॉनिक डिजीज़ को जाने में वक्त भी लगता है। इसलिए समय का ज्ञान हम तभी दे सकते हैं जब हमको प्रोग्नोसिस का पता होता है। इसलिए नॉलेज ऑफ डिजीज़ के अंदर हम ये जानते हैं कि हम कॉम्प्लिकेशन भी जानते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, हम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, हम प्रोग्नोसिस भी कर सकते हैं। मगर इसके लास्ट में क्वालिफिकेशन के अंदर में एक सेंटेंस दिया हुआ है ऑब्स्टैकल टू क्योर। ये ऑब्स्टैकल टू क्योर क्या होती है? हम सारे परिश्रम करने के बाद, हम अच्छी दवा चुनाव करने के बावजूद भी, सही मेडिसिन चुनाव करने के बाद भी हम किसी पेशेंट को आराम नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि कहीं न कहीं रोग को आराम करने में कोई न कोई चीज़ बाधा डालती है और उस बाधा को भी आपको दूर करना है। उसको सपोज एक एजमेटिक केस है और एजमेटिक केस जो है वो जो रहने का जो जगह है वो डैम्प प्लेस है। वो ऐसा घर रहता है जहाँ पर वो सीड पड़ा हुआ है, डैम्प है। यू नेवर क्योर दैट पेशेंट बिकॉज द पेशेंट इज मोस्ट सफरिंग फ्रॉम द डैम्प प्लेस। वो आपको कहना पड़ेगा कि उस पेशेंट को उस जगह से अलग कर दें जहाँ पर जिस कमरे में डैम्प रहती हो। तो डैम्प से दूर करने के बाद हम उसको उससे ठीक कर सकते हैं। ऑब्स्टैकल हमारे खान पान के अंदर भी हो सकती है। हमारे खान पान में अगर गड़बड़ी हो, जिस बीमारी के अंदर जिस चीज़ को नहीं देनी चाहिए खान पान में, अगर वो खान पान पेशेंट उससे उस तरह का चीज़ कर रहा है तो भी वो पेशेंट आराम नहीं होगा। तो वो ऑब्स्टैकल जो आती है, ऑब्स्टैकल उस बाधाओं को भी हमको दूर करना पड़ा। इस नॉलेज के अंदर में ये सारी बातों को ज्ञान के साथ साथ में चॉइस ऑफ द प्रॉपर डोज। ये प्रॉपर डोज क्या होती है?
ये प्रॉपर डोज होती है कि एक पेशेंट को कितनी दवा की ज़रूरत है, कितनी डोज की ज़रूरत है। अगर हम डोज भी ज़्यादा देते हैं, उसको डोज अधिक डोज में मेडिसिन खिलाते हैं, तो भी मेरा पेशेंट आराम नहीं होता है, क्योंकि एक्सेस डोज देने के बाद मेरा पेशेंट जो है वो जो सही अवस्था में जा रहा था, आराम होने की अवस्था में जा रहा था, वो पेशेंट पुनः ही स्थिति उसकी बदल जाएगी और वो ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रॉपर डोज की भी आवश्यकता करना पड़ता है। रिपीटेशन ऑफ डोज होती है, और रिपीटेशन ऑफ डोज की किस वक्त में कितने दवा कितने वक्त के अंदर देना चाहिए। अगर ये रिपीटेशन ऑफ डोज भी हम गलत कर देते हैं, रिपीटेशन ऑफ डोज हम सही नहीं देते हैं, रिपीटेशन हम सही वक्त पर भी नहीं करते हैं, तो भी हमारा पेशेंट आराम नहीं होता है। और दूसरी चीज़ है कि नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर। ये मेडिसिनल पावर क्या होती है? हम मेडिसिन की क्रिया को जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस मेडिसिन में जिस बीमारी को पैदा करने की शक्ति है, उसी बीमारी में उसको आराम करने की भी शक्ति है। तो ये अब मटेरिया मेडिका के द्वारा जो जो सिम्टम्स पढ़ते हैं, वो सिम्टम्स क्या है? नॉलेज ऑफ द रेमेडी है। उस नॉलेज ऑफ रेमेडी के द्वारा ही हम सिलेक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। इसलिए नॉलेज ऑफ डिजीज जानना जरूरी है, नॉलेज ऑफ मेडिसिन जानना जरूरी है, रिपीटेशन ऑफ डोज भी जानना जरूरी है, प्रॉपर डोज देना ज़रूरी है, और ऑब्स्टेकल टू क्योर भी जानना जरूरी है। इसलिए ये थर्ड एफरोइज्म जो है नॉलेज ऑफ डिजीज, ये थर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ द फिजिशियन मस्ट लर्न, मस्ट गाइड टू होम्योपैथ टू द बेटर अचीवमेंट इन योर ट्रीटमेंट। सभी से आग्रह है कि ये नॉलेज ऑफ डिजीज़ जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से अध्ययन करें, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, और सारे विषयों का ज्ञान होने के बाद ही आप किसी पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसलिए सारी बातों को ज्ञान होना ज़रूरी है। नॉलेज का मतलब ये नहीं होता है हमारा डिग्री सिर्फ साथ होती है, डिग्री के साथ साथ हमारा क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है, और ये क्वालिफ़िकेशन हमारे ज्ञान से संबंध है। ज्ञान के लिए हमारा जो साइंस जो है वो कॉमन सेंस से भी काम चलता है, मेडिसिनल सेंस से भी काम चलता है। बोथ सेंस कम्स एट ए टाइम, और हम किसी पेशेंट को आराम करने के लिए दोनों सेंस को अप्लाई करते हैं, कॉमन सेंस प्लस मेडिसिनल ज्ञान। थैंक यू।